Hi all, welcome back to the another video. So I hope you had already a blast in the new year and already on the track to prepare and pursue your dreams or whatever you are trying to achieve, right? So in today's video, we'll be discussing a very common question or query which I have frequently get asked in the LinkedIn or even in my YouTube comments. So it's commonly revolves around how did you prepare for interviews for switching jobs along with a full-time role, right? So in this video, I'll be sharing the strategy or like not a strategy, just the habits or the small thing which helped me while preparing for the interviews along with a full-time role. So to give you some context, currently I'm a software engineer at Microsoft, and before joining Microsoft, I was placed as a campus hire at Deloitte. Okay, so then how did this switch happen, or this transition, and how did I prepare for it? So let's start. So, okay, when I joined Deloitte, right? So I was happy with Deloitte, but at the same time, it was always my desire or dream to join a tech company, a big product-based company, right? And even though I joined Deloitte, which is not known for its tech, it's a consultancy firm, a big four consultancy firm, right? So, but I know which is the company where there's no tech, right? So I went to the HR folks and was see, I'm interested in these skills. These are my areas where I would like to improve. I would like to be enrolled in a project which where I can contribute with these skills, right? Or learn new skills around these. And if you don't ask, the answer is always no. But since I had asked, I got an opportunity to work in a fantastic team and work in a product from scratch. Literally, I wrote the first line of that product, right? Eventually, as a team, when we got expanded, we learned new things, right? The code structure, code base, but it was all everything from scratch. So, as a fresher campus hire, it was really a great experience for me. हैविंग सेड दैट, जब तक सारी चीज़ें चल रही थी, मेरा मन ये भी था कि आई नीड टू स्विच, बिकॉज मेरे को था, और मैं ऐसा नहीं प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, आई वॉज डूइंग प्रिपरेशन इनकन्सिस्टेंटली, ठीक है, आज क्वेश्चन बनाया, कल नहीं बनाया, अच्छा वीकेंड में देखेंगे, ठीक है, तो उस तरह से चल रहा था, कोई ऐसे रिग्रेसली बहुत अप्लाई भी नहीं करता था, क्योंकि सेल्फ डाउट था, थॉट क्या रहे आता ही नहीं है, डीपी नहीं होता, ग्राफ नहीं होता, तो क्या ही होगा, क्यों ही अप्लाई करना, तो उतना अप्लाई भी नहीं करता था, कभी कभी कुछ महीने में एक दो कर दिया उस तरह का, ठीक है, तो ये सब चल रहा था, बट एट द सेम टाइम कभी कुछ बनाया कभी कुछ बनाया, तो एक बार ऐसे ही जब रैंडम अप्लाई करता था ना, एक बार अमेजोन में किया था, ठीक है, और अमेजोन में किया, आफ्टर सम डेज आई गॉट अ मेल फ्रॉम देम फॉर एन ओए असेसमेंट, एंड ट्रूली ट्रस्ट मी, जिस दिन वो मेल आया, आई वाज लाइक ओ वाओ, मतलब यकीन नहीं हो रहा था ना कि यार मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, ठीक है, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, मेरे को असेसमेंट के लिए भेज दिया इन्होंने, और 2 दिन का टाइम दिया था, ठीक है, फिर 2 दिन में टाइम था, वो फ्राइडे को आया था, संडे तक मेरे को असेसमेंट कंप्लीट कर देना था, मैंने एक दिन सैटरडे अपने नोट्स थे वो रिवाइज किए, ठीक है, और फिर उसके बाद संडे दिया असेसमेंट, एंड उसके बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया कुछ दिन, आई डिड ट्राई टू फॉलो अप, उसके बाद फिर वही, जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, फिर अपना पुराना रूटीन, कभी कोई सॉल्व किया, मन हुआ तो किया, नहीं हुआ तो नहीं किया, कभी अप्लाई करने का कुछ दिखा अच्छा तो कर दिया, नहीं तो नहीं, एंड एट द सेम टाइम कभी कभी बीच में उससे फॉलो अप कर लिया, ठीक है, तो ये सब चल रहा था, और फिर ये सब करते करते एक दिन अचानक मेल आता है कि हे यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यूज, आपका इस तारीख को इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, ठीक है, अब तो भाई उस टाइम लगा कि ओ माय गॉड आई एम अगेन अनप्रिपेयर्ड, अब कैसे होगा क्या होगा, फिर वही नोट्स थे जो थोड़े बहुत पढ़े थे, वही पैचेस में जो प्रिपरेशन की थी उसे रिवाइज किया और गए इंटरव्यू में, ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे प्लग इन, आई ऑलरेडी हैव द एंटायर अमेजॉन इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन माई चैनल, विल एड इट इन द लिंक, यू कैन चेक इट आउट फॉर दैट, ठीक है, तो इंटरव्यू में गए, जैसा अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको यू ऑलरेडी माइट हैव आइडिया दैट आई कुड नॉट क्लियर इट आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, और फिर उनका आ गया कि हाँ आफ्टर इंटरव्यूज 2 दिन बाद कि ये ही कुड नॉट मूव फॉरवर्ड विद यू, तो बुरा लगा, ऑब्वियसली बुरा लगा, बट एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ी चीज़ की रियलाइजेशन हुई, ठीक है, यही कि अपॉर्चुनिटी ना
कभी भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, आपको बता के नहीं आएगी, आपको टाइम दे के नहीं आएगी, ठीक है। और आएगी ना तो इट्स बेस्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, उसमें झपट झपट जाना कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी मिली उसमें झपट जाओ। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने उस दिन ठाना था, इट वॉज अराउंड 28 मई 2021, कि नहीं, रोज पढ़ेंगे, रोज कोडिंग का एक डेटा स्ट्रक्चर, एक कुछ एल्गो क्वेश्चन बनाएंगे। और उस दिन से लेके मई मई के लास्ट वीक 28 27 मई से until more than I will say until June of the last year 2022, for more than 1 year, daily, I'm saying daily, I solved at least one problem of lead code. I chose one platform, I was consistent with that lead code, ठीक है। और एकदम कुछ नहीं सोचा, कब एकदम अपने प्रोसेस पे ध्यान दिया, क्योंकि एट द एंड हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा नहीं पता, कॉल्स आएंगे नहीं आएंगे नहीं पता, हमारा क्या ध्यान है, जब कॉल्स आएंगे हमें उसका यूटिलाइज करना है, प्रिपेयर्ड रहना है। तो बस आंख बंद करके प्रिपेयर करते रहा, रोज लीड कोड लगाते गया, ठीक है। और अप्लाई करने की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। पहले जो पैचेस में महीने में 1-2 अप्लाई करता था, और वीकली अप्लाई, सैटरडे को बैठ के अप्लाई कर रहे हैं। हाँ भाई, 10-10 कंपनी, एक एक कंपनी में मल्टीपल रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिस्टिक चांस। तो ये सब कर रहे हैं और खुद 1 साल कर रहे हैं अंटिल वन डे, ठीक है। और एक चीज और, दूसरी कंपनीज जहां इंटरेस्ट नहीं है वहां भी अप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर वहां से इंटरव्यू कॉल आता है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे मॉक इंटरव्यूज की तरह लेंगे, ठीक है। आप असली इंटरव्यूअर्स, असली एचआर से बात करेंगे एज मॉक इंटरव्यूज, आपके लिए वो मॉक होगा। आपको ये समझ में आएगा कि इंटरव्यू में अपने नर्व्स पर कैसे काबू रखते हैं, एक इंटरव्यू पे कैसे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एक इंटरव्यू टेम्परामेंट क्या होता है, आप वो डेवलप करोगे उससे। तो ये चलता गया अंटिल वन डे आई अगेन दिस, बहुत सारी कंपनीज हैं यार, VMware का दिया, Media.net का देता गया, इस तरह से। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज आई स्टिल गॉट रिजेक्टेड, ठीक है। उस पर कभी और बात करेंगे कि वो फ्रेम ऑफ माइंड में कैसे आना है, प्रिपेयर करते रहना इवन आफ्टर यू आर गेटिंग रिजेक्टेड, ठीक है। करते रहा, फेलियर होते थे उस पर थोड़ा देखता था, अच्छा ये सवाल इस कंपनी में कहाँ गलत गया, यहाँ ये चेंज हो सकता था, वो सब देखता था, ठीक है। फिर सब आगे बढ़ते बढ़ते अंटिल वन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम Amazon, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कि हाय ओए, फिर से वही नोट्स पढ़ा, ओए दे दिया, ठीक है। फिर वही लग रहा था, भाई प्रिपेयर नहीं हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, यू विल नेवर, आई एम सेइंग, यू विल नेवर एवर फील दैट यू आर 100% प्रिपेयर्ड, ठीक है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, गो विद द फ्लो, मेहनत कंटिन्यूस, अपने जो साल भर जो पढ़ा है, जो प्रिपेयर करते आ रहे हो, उस पर भरोसा रख के गो विद इंटरव्यूज। नेवर एवर से नो टू इंटरव्यूअर्स और एचआर दैट हे आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, बिकॉज यू नेवर फील दैट यू आर 100% प्रिपेयर्ड। इंटरव्यूज दिए एंड जस्ट क्योंकि अपने उस पर तो भरोसा था, बहुत सारे इंटरव्यूज अच्छे भी जा रहे थे, कुछ रिजेक्शन भी हो रही थी, पीछे जो कंपनी से अप्लाई करता था कहीं कहीं अच्छे भी जा रहे थे, मॉक इंटरव्यूज दे रहा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ ही गया था, 1 साल का मेहनत है यार, ठीक है। तो कंपाउंडिंग तो अपना काम दिखाएगी, जस्ट लाइक अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड। फिर उसके बाद दिया, उसका अलग इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, आप चाहो तो वो देख सकते हो, वो भी ऐड कर दूंगा। एंड या इट हैपेंड, राइट, एज यू नो आई नो वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट। सो बेसिकली यही था, कुछ जादू नहीं है, कुछ टोटका नहीं है दैट आई वुड लाइक टू शेयर, ये कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। ओनली थिंग इज योर PQ मतलब P क्वेश्चन, P का है, P का मतलब होता है परसिस्टेंस, परसिवियरेंस एंड पेशेंस, तीनों चाहिए, ठीक है। हम अपने सिस्टम पे भरोसा करते हैं भाई कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं रोज, हमें उस पर भरोसा है, हम ऑनेस्ट हैं, हम डिसिप्लिन्ड हैं, ठीक है। आज नहीं होगा कल हो जाएगा, क्योंकि हम रेगुलर हैं, ठीक है। हम रेगुलरली प्रिपेयर कर रहे हैं, हम कंपाउंड करते जा रहे हैं अपनी नॉलेज को, ठीक है। तो इससे बहुत बेनिफिट हुआ, ठीक है। एंड आपसे यही कहूँगा कि इस चीज़ को फॉलो करो, ज़रूर फॉलो करो, ठीक है। कंटिन्यूसली मेहनत करो, एट द सेम टाइम DSL को तो ज़रूरी है ही है। कभी DSL को से बोर हो गए तो चलो थोड़ा कोर पढ़ लो, कोर सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हो, थोड़ा नेटवर्किंग पढ़ लो यार, गीक्स से एक आर्टिकल खोलो, ऑपरेटिंग सिस्टम से पढ़ते जाओ, ठीक है। अगर आपको प्री नॉलेज है तो, नहीं तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है तो कोई अच्छा
बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हो, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, नहीं तो आप कोई अच्छा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे पास, टीचर्स हैं यूट्यूब कम्युनिटी में, उन्हें फॉलो कर सकते हो। लेकिन कुछ पढ़ते रहो। कर्व जो है ना, हमेशा आपकी जो साइन कर्व होती है ना, ऐसे 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 ऐसे, प्रोग्रेसिव कर्व वैसे ही होती है। आज लगेगा सही आ रहा है, कल लगेगा कम आ गया, फिर सही जा रहा है, फिर कम आ गया। कभी ऐसे नहीं जाएगी प्रोग्रेस आपकी, ठीक है। नॉलेज धीरे 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 बढ़ेगी, वो e⁻x के ग्राफ जैसा, ठीक है। तो इस पे काम करो आप लोग। एंड बस यही यार, इतना ही शेयर करना था। और मैं एक बार लिखा हूँ, चेक कर लेता हूँ कुछ भूल तो नहीं गया, बताना। नहीं यार, सब सही है, सब बता दिया। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और आपके कोई और डाउट्स और कोई और क्वेरीज हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिख देना। सो कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।